Students, now we will learn about numerical solution of differential equation, in which first of all we will see the basic definition. What is differential equation? Okay. In mathematics, a differential equation is an equation that relates one or more functions and their derivatives. And these are the examples of differential equation, which you can see that in first example, the derivative of y is dependent variable, x is independent variable, is equal to f of x. This is the derivative and this is first derivative. Similarly, you can see another example of differential equation in which dy by dx is equal to f of xy, and this is the third example of equations in which we can see that there is partial derivatives, partial x1 into partial y over partial x1 plus x2 partial y over partial x2 is equal to y. Here, after that, what is ordinary differential equation? We must know about this. An ordinary differential equation is a differential equation that depends on only one independent variable. Here you can see in this example, y is dependent variable, okay, and x is independent variable. So in this example, we can see that the derivative of y is only dependent on one variable, that is x. So such type of equations, differential equations, are known as ordinary differential equation. After this, what is partial differential equation, and we will denote it with PDE, and the ordinary differential equation we denote it with ODEs. A partial differential equation is a differential equation which dependent variable depends on two or more independent variables. Okay, ऐसी इक्वेशन हमारे पास जिसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करता हो, ऐसी इक्वेशन हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. एज यू कैन सी हियर देयर आर टू independent variables x and y. ठीक है, and such type of equation is known as Laplace equation. ये हमारे पास है. There are many other examples about partial differential equation, ordinary differential equation, and differential equations. After this, now we will see how to find the formula of Euler method. हम यहाँ पे Euler method का एक सबसे पहले formula generate करेंगे. As you can see here, in this Euler method, we have a differential equation, this one dy by dx is equal to f of xy. ठीक है, और यहाँ पे जो हम कंडीशन यूज कर रहे हैं, सब्जेक्ट टू द कंडीशन y of x नॉट इज इक्वल टू y नॉट, मीन्स के ये y की वैल्यू हमारे पास जो x नॉट पे आती है वो y नॉट है. यहाँ पे ग्राफिकली यू कैन सी दैट वी हैव दिस कर्व, दिस वन, ठीक है, and on x-axis we have this point x naught, x1, x2, and so on up to xm, and corresponding to these values of x naught we have y naught, y1, y2, and so on ym. ठीक है, so suppose that we wish to find successively y1, y2, and ym. ठीक है, और हम कैसे find out करेंगे? by using the values of x naught, x1, x2, and so on xm, where ym is the value of the y corresponding to xm. यहाँ पे जो ym है वो value corresponding to this xm है. And how can we calculate these x1, x2, and up to so on xm? The distance of from x0 to x1 is h. So xm जो हमारे पास यहाँ पे फार्मूला जो हमारे पास होता है xm is equal to x0 plus mh हमारे पास आ जाएगा. अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने इस जो है वी यूज द प्रॉपर्टी दैट इन अ स्मॉल इंटरवल, हम एक इसको स्मॉल इंटरवल में हम इसको स्प्लिट कर रहे हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं x0 टू x1, ये हम स्ट्रेट लाइंस की फॉर्म हम कंसीडर करेंगे फ्रॉम हेयर टू देयर. यहाँ से भी ये जो लाइंस हम जो बना रहे हैं वो स्ट्रेट लाइंस हमारे पास होंगे. दिस वन, दिस लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन हम कंसीडर करेंगे और इसको भी स्ट्रेट लाइन कंसीडर करेंगे. So here we use the property that in a small interval a curve is nearly a straight line. ये जो कर्व हमारे पास थी, यहाँ पे हमने इसको स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में हमने इसको कंसीडर हम कर रहे हैं. और दस इन द इंटरवल हमारे पास ये जो इंटरवल है, कौन सा इंटरवल, x0 to x1 of x,
वी अप्रोक्सीमेट द कर्व बाय टेंजेंट एट द पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट। हमारे अभी जो फिगर आप देख रहे थे, यहाँ पे ये जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन थी, इस कर्व के ऊपर एक टेंजेंट बनाता है और वो पॉइंट कौन सा आ रहा है, एक्स नॉट वाई नॉट। ठीक है, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट एक्स नॉट वाई नॉट, हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी एट दिस पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट, वो क्या होगी, y माइनस वाई नॉट। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो पॉइंट के ऊपर हम लेते हैं वो है y नॉट माइनस वाई नॉट, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू डेरिवेटिव dy by dx at point x naught y naught into x minus x1। अब इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं, this dy by dx at x naught y naught is in fact is equal to f of x naught y naught। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे। when we will rearrange this equation, so we can see that we can write it as this form। ठीक है, इसको हम y के लिए हम सॉल्व कर लेते हैं। y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। ये ऊपर वाली इक्वेशन हमने रीअरेंज किया है। Hence the value of y corresponding to x is equal to x1। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वैल्यू है एट x is equal to x1 वो हम पुट कर देते हैं। एट x is equal to x1 हमारे पास जो वैल्यू ऑफ y वो क्या है, y1। सो y1 is equal to y नॉट प्लस इस x को हम रिप्लेस कर रहे हैं विद x1। So you can see here x1 minus x naught is equal to into f of x naught y naught। And next, इसी इक्वेशन को we can also write in this form, y1 is equal to y naught plus what is x1 minus x naught, this x1 minus x naught is in fact we can see in our figure, this is equal to 8। okay, this x naught minus x1 is equal to 8। ये वाली वैल्यू हम इसको पुट कर देंगे। as you can see this is equal to 8 and we can also replace with f of x naught y naught। in fact this is the first derivative और ये डेरिवेटिव जो पॉइंट x naught y naught पे हम उसको रिप्लेस कर देते हैं विद y naught। इट्स मीन ये जो डैश आपको ऊपर नजर आ रहा है दिस इज द डेरिवेटिव एट x naught एंड y naught। ये जो पॉइंट था हमारे पास उसके ऊपर इसका डेरिवेटिव। तो अभी तक यहाँ से हमने जो हमने जो इक्वेशन हमारे पास आई है, दिस इक्वेशन y1 is equal to y naught into h plus h into y naught, डेरिवेटिव उसका फर्स्ट वो हमारे पास आ जाएगा। ये इंटरवल हमारे पास था x naught to x1, उसके लिए अभी तक हमने y1 की वैल्यू फाइंड आउट की है। सिंस द कर्व इज अप्रोक्सीमेटेड बाय द टेंजेंट इन x naught x1, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटेड हमारे पास वैल्यू थी इसलिए हम इसको अप्रोक्सीमेटली हम इसको लिख सकते हैं। एज यू कैन सी हेयर, ये जो अभी ऊपर वाले अबव इक्वेशन है उसको हम लिखेंगे y1 is equal to this form, y1 approximately is equal to y naught plus h into y naught फर्स्ट डेरिवेटिव होगा हमारे पास जो इसकी इक्वल आ जाएगा और ये इसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू हमारे पास होगी। ये जो इंटरवल कौन सा था अभी जिसपे हमने ये वैल्यू फाइंड आउट की है, एट इंटरवल फ्रॉम x नॉट टू x1। ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है ये इंटरवल हमारा था x नॉट टू x1। सिमिलरली इन द नेक्स्ट इंटरवल, अगर हम इससे नेक्स्ट इंटरवल लें, नेक्स्ट इंटरवल हमारे पास जो फिगर में है, यू कैन सी इट, द नेक्स्ट इंटरवल इज इन दिस फिगर फ्रॉम x1 टू x2। ठीक है, उसके लिए हमारे पास जो y की वैल्यू है वो क्या होगी, सेम टू सेम जैसे अभी हमने y1 फाइंड आउट किया है, सिमिलरली हमारे पास जो y2 है और ये अभी तो हमने y1 वैल्यू फाइंड आउट की है एट पॉइंट y ऑफ x1। ये भी हमारी x1 पे वैल्यू हमने फाइंड आउट की है। नेक्स्ट क्या होगा एट y2 और जो x2 की वैल्यू, इनफैक्ट दिस इज इक्वल टू x2 y, द वैल्यू ऑफ y एट x1 प्लस 8 इज इक्वल टू y ऑफ x2। सिमिलरली जैसे अभी हमने ये वाला फार्मूला फाइंड आउट किया है, हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा y x1 प्लस h डेरिवेटिव ऑफ y एट x1। ठीक है, और इसी को इक्वेशन को हम इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं,
y2 approximately is equal to y1 plus h, y1 फर्स्ट डेरिवेटिव, जैसे कि ऊपर हमारे पास y1 था approximately y0 plus h into derivative of y at point x1. Similarly we have this value. और अगर हम इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाहें तो हमारे पास जो आइलर इक्वेशन यहाँ पे आएगी वो आएगी y n plus 1 approximately equal to yn plus h into yn derivative. So this is the general formula of Euler method to find the numerical solution of differential equations. तो इस फार्मूले को अब अभी आप नोट कर लें. By using this formula we will solve some question related to this ordinary differential equation जिसमें हमारे पास one independent variable होगा, उसको हम solve करेंगे. For example, how can we apply this Euler method? As you can see here, we have a question. In this question, we have a differential equation dy by dx, and that is equal to x plus y. And so our condition हमें क्या given है, y naught value of y at x, जो हमारे पास यहाँ पे x naught है, वहाँ पे वैल्यू जो वैल्यू आ रही है y naught की वो 1, और h जो हम यहाँ पे लेंगे h is equal to 0.1. okay, these are the condition that is given. Y of 0 is equal to 1, h is equal to 0.1 by using Euler method. हमने Euler method को अप्लाई करते हुए इसको सॉल्व करना है. अभी हमने देखा डिफरेंशियल इक्वेशन में, अभी ऊपर जो मेथड हमने स्टार्ट किया था Euler मेथड में, आई कैन शो यू अगेन. वहाँ पे dy by dx हमारे पास था f of x y, एज यू कैन सी हियर dy by dx is equal to f of x y था. सेम हम क्या करेंगे, अब इसी इक्वेशन में हमारे पास जो राइट साइड पे है, वी कैन राइट इट this is equal to this term and this value is equal to f of xy. okay, f of xy is equal to x plus y, और यहाँ पे ये जो वैल्यू हमारे पास 0 है, that is x naught. this value 1 is equal to y naught, और h की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0.1. अभी जो हमने जनरलाइज फार्मूला लिखा Euler मेथड का, दिस इज द फार्मूला, दिस इज जनरलाइज फार्मूला ऑफ Euler मेथड. वो क्या था, y n plus 1 approximately is equal to yn plus h time the derivative of y at n. वो हमारे पास आ जाएगा. अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे ये जो हमारे पास y n डैश है, इनफैक्ट दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव है y का, और इसको हम लिखेंगे, यू कैन आल्सो राइट इट एज f ऑफ, जो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास है f ऑफ एक्स एन, और हम इसको वाई एन भी लिख सकते हैं. ठीक है, और f ऑफ एक्स एन वाई एन हमारे पास f ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल, x प्लस वाई के. सो दिस इज इक्वल टू एक्स एन प्लस वाई एन. क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो f ऑफ एक्स वाई गिवन है वो x प्लस वाई की फॉर्म है, तो यहाँ पे वाई एन डैश जो हमारे पास डेरिवेटिव है उसको हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे एक्स एन प्लस वाई एन. अब हम इसके डिफरेंट जो n की वैल्यूज लेके इसके डेरिवेटिव्स हम फाइंड करेंगे. फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन के अंदर ये जो भी हमने फार्मूला बनाया है, n जीरो पुट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो n है इसको जीरो पुट करेंगे. सो पुट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू जीरो. जब जीरो पुट करें यू कैन इजीली सी y ऑफ 0 प्लस 1 y1 आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू y नॉट प्लस h टाइम x नॉट प्लस y नॉट. ठीक है, क्योंकि जीरो हम पुट कर रहे हैं n को, तो ये वैल्यूज क्या आ जाएगी. नाउ वी नीड टू सी कि हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज हैं. y नॉट की वैल्यू क्या है, हमारे पास 1 है, वो पुट कर दिया. h की वैल्यू गिवन है 0.1. what is x naught, x naught is equal to 0. you can see here x naught is equal to 0, and what is y naught is equal to 1. now we need to simplify it. ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. as you can see on the next page, on this page, so y1 is approximately equal to 1.1. जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास y1 की वैल्यू है. इट्स मीन
द वैल्यू ऑफ y एट 0.1, ठीक है, एट 0.1 हमारे पास वो क्या आती है 1.1। और ये कौन सी वैल्यूज है हमारे पास, जो अभी हमने जो फिगर थी अलिस मेथड्स के लिए जो हमने फिगर को यूज़ किया है, मीन्स कि अभी जो क्वेश्चन में हमें ये वाली कंडीशन गिवन थी y नॉट एट x नॉट। नेक्स्ट अभी जो हमने फाइंड आउट किया वो y1 फाइंड किया है एट x1। सिमिलरली वी नीड टू फाइंड y2 ऑन x2, ये भी हम फाइंड करते हैं एंड सो ऑन। नेक्स्ट हम डेरिवेटिव जो है इसके फाइंड करते जाएंगे। इसमें भी सेम केस में आइलैंड मेथड में भी आप क्या कर सकते हैं, एट द एंड वी कैन आल्सो फाइंड द एग्जैक्ट सॉल्यूशन। और ये जितनी भी कंप्यूटेड वैल्यू हम कर रहे हैं इनका हम उसका एरर भी फाइंड कर सकते हैं, हमारे पास एरर क्या आता है। अभी हमने y1 फाइंड किया है, नेक्स्ट वी विल सी हाउ टू फाइंड y2। उसके लिए क्या करेंगे, वो जो हमारी इक्वेशन है इन दिस इक्वेशन जहाँ पे हमने n0 पुट किया है और n इज इक्वल टू 0 के लिए भी हमने सॉल्व किया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो हमने इक्वेशन अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास वैल्यू है इसके अंदर पुट करेंगे n इज इक्वल टू 1, और इस तरह से n2 के लिए भी हम इसको सॉल्व करेंगे। सो यू कैन सी फॉर n इज इक्वल टू 1 एंड 1 के लिए हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज आल्सो वेरी इजी। रिप्लेस करेंगे n की वैल्यू 1, फिर लेफ्ट साइड पे आ जाएगा y2 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू y1 इंटू एज, यहाँ पे x एंड yn था तो x1 y1 आ जाएगा। अब फिर से हम वैल्यूज को पुट करेंगे, y1 तो अभी हमने ऊपर फाइंड किया जो वो है 1.1 प्लस एज की वैल्यू 0.1 है। x1 की वैल्यू हमें पता है, हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x1, x1 इज इक्वल टू x नॉट प्लस एज, और x1 हमारे पास है 0.1, तो 0.1 आ जाएगा। y1 सेम अभी फाइंड किया है 1.1, इसको भी जब सिंप्लीफाई करेंगे यू कैन सी द आंसर ऑफ y2 is approximately 1.2। so we can say that the value of y2 at x is equal to x1, ठीक है, वो हमारे पास क्या आ रही है 1.22। ये x2 पे वैल्यू सॉरी 0.2 मीन दिस इज द वैल्यू एट दिस इज इन फैक्ट इज इक्वल टू y ऑफ x2 के इक्वल हमारे पास इसकी वैल्यू है। नाउ फॉर n इज इक्वल टू 2, वो जो हमारी इक्वेशन है ऊपर उसी इक्वेशन में हम क्या पुट करेंगे, विच इक्वेशन, दिस वन। अब इसके अंदर अब हम पुट करेंगे अगेन n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे। जब n2 पुट करेंगे लेफ्ट साइड पे क्या आ रहा है देखिए 2 प्लस 1 3 अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू y2 प्लस एच टाइम x2 प्लस y2। क्लियर, ये वाली वैल्यूज को हम जितनी भी इसके अंदर वैल्यूज होंगी उसको हम पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो यू कैन सी हेयर फॉर n इज इक्वल टू 2 हमारे पास y3 क्या आएगा अप्रॉक्सीमेटली y2 प्लस एच टाइम x2 प्लस y2। नाउ वी नीड टू पुट द वैल्यूज, और ये क्या है y की वैल्यू है एट x इज इक्वल टू एट x इज इक्वल टू यू कैन सी इट। इससे पहले ऊपर हमने क्या फाइंड आउट किया, x नॉट पे थी x1 x2 और x3 पे ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। दिस इज वैल्यू एट x इक्वल टू 3। नाउ वी नीड टू पुट द वैल्यूज, y2 की वैल्यू अभी हमने ऊपर फाइंड आउट की है 1.22, एच की वैल्यू 0.1 है, x2 हमारे पास क्या, हाउ कैन वी फाइंड x2, 0.2 आ जाएगा, और y2 की वैल्यू अभी फाइंड की हमने 1.22, सिंप्लीफाई करेंगे सो दिस इज द आंसर ऑफ y3 व्हिच मीन दिस इज द वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू 3, और x3 हमारे पास यहाँ पे क्या है 0.3। ओके, सो फाइनली वी हैव y 0.1 पे जो y की वैल्यू है 1.1 है, 0.2 पे जो वैल्यू है 1.2 है, और 0.3 पे हमारे पास जो y की वैल्यू आती है 1.362 है। तो क्या किया अभी हमने जो इसका जो सोल्यूशन फाइंड किया डिफरेंशियल इक्वेशन का, वी कैन सी दैट हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो थी उसके हमने डिफरेंट पॉइंट्स पे ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन थी, ठीक है, इसके हमने सोल्यूशन फाइंड किए हैं और ये डिपेंड कर रही थी y के ऊपर, ऑन दिस y।
हमने एट एक्स नॉट पे गिवन था 1, x1 पे वैल्यू फाइंड की, x2 पे की, x3 पे की। अब हम इसको इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन अगर हमें इसका फाइंड आउट करना हो, डेट इज़ वेरी इजी। इसी इक्वेशन का इसको हम सॉल्व करेंगे टू फाइंड द एग्जैक्ट सोल्यूशन। मींस कि अगर हम इस इक्वेशन को वी कैन इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट करने के बाद इसका क्या करें, एग्जैक्ट सोल्यूशन निकाल लें। और एग्जैक्ट सोल्यूशन निकालने के बाद जो हमारी कंप्यूटेड वैल्यू है आइलर मेथड से, उनके साथ हम कंपेयर करके इसका एरर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव another example। इसी तरह से हम देखते हैं कि हाउ कैन वी सॉल्व दिस इक्वेशन, दिस एग्जांपल बाय यूजिंग आइलर मेथड। इसमें भी वी कैन सी दैट वी हैव गिवन द डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इक्वल टू 1 माइनस y। और जो कंडीशंस गिवन है एट x नॉट, ये हमारे पास x नॉट मीन 0 पे जो y नॉट हमारे पास वो 0 गिवन इन द रेंज। अब रेंज जो x की वैल्यू जो वेरी करेंगे वो 0 टू 0.3 है, रेंज गिवन है इसकी। और हम एच की वैल्यू हम लेंगे 0 टू 0.1 और इसको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग आइलर मेथड। अभी आइलर मेथड में हमने क्या, हमारे पास जो राइट साइड पे जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में वो है 1 माइनस वाई। व्हाट इज एक्स नॉट, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स नॉट दैट इज 0। वाई नॉट की वैल्यू भी 0, यू कैन सी क्वेश्चन में जो गिवन है, वाई नॉट भी गिवन है, एच भी गिवन है। ओके, so what is the general formula of Euler method? This is the general formula yn plus 1 approximately is equal to yn plus h time yn dash, और dash यहाँ पे डेरिवेटिव पुश होता है। अब हम इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे, ठीक है। इसमें वैल्यूज को किसकी पुट करेंगे, इस डेरिवेटिव की। और ये डेरिवेटिव किसकी फॉर्म में हमें गिवन है, इन द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई। वो किसके इक्वल है, 1 माइनस वाई, सो दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस वाई एन, ठीक है, 1 माइनस वाई एन। और इसी में हम क्या करते हैं, एच की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, यू कैन सी। और इसको जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो दिस इज द अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू जो हमारे पास जो जनरलाइज फॉर्म में वाई एन प्लस 1 अप्रोक्सीमेटेड 0.1। इसको सिंप्लीफाई कर लें आप, 0.1 को जब हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 0.1 इंटू 1 और माइनस 0.1 इंटू वाई एन, और फिर इस वाई एन के साथ जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 0.1 प्लस 0.9 इंटू वाई एन हमारे पास आ गया। सिमिलरली जैसे कि इससे ऊपर वाले एग्जांपल में हमने क्या किया कि एट डिफरेंट पॉइंट्स जो हमने हमारे जो एक्स नॉट गिवन है, x1 x2 x3 एंड सो ऑन में भी x4, जहाँ तक भी आप इसकी डिफरेंट वैल्यूज पे डेरिव की जो वैल्यूज वो फाइंड आउट करना चाहते हैं वो हम फाइंड कर लेंगे यहाँ भी, एज यू कैन सी हेयर। अब हम रिप्लेस करेंगे n को 0 1 और n2 पुट करेंगे, ठीक है। किसमें पुट करेंगे, इन दिस इक्वेशन, ये जो हमारी ऊपर वाली इक्वेशन है इसमें हम वैल्यूज को n को रिप्लेस करेंगे, 0 पुट करेंगे पहले, फिर 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर n इज इक्वल टू 0, जब हम n को 0 पुट करते हैं, n इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यू कैन सी y1 approximately equal to 0.1 प्लस 0.9 इंटू वाई नॉट। और वाई नॉट हमें ऊपर गिवन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई नॉट, जो गिवन है ऊपर हमारे पास वाई नॉट इज इक्वल टू 0। वाई नॉट यू कैन सी वाई नॉट इज इक्वल टू 0 गिवन है, ठीक है। सो पुट द वैल्यू ऑफ वाई नॉट दैट इज इक्वल टू 0, सिंप्लीफाई करेंगे तो y1 हमारे पास जो आता है वो 0.1 आ जाएगा। फॉर y2 कैसे फाइंड करेंगे, वैल्यू ऑफ दिस y, दिस डिपेंडेंट वेरिएबल एट n इज इक्वल टू 1, ठीक है। वो हमारे पास क्या आएगी, जो ऊपर इक्वेशन है हमारे पास उसी में वैल्यू पुट करेंगे, दिस इज अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू 0.1 इंटू 0.9 इंटू y1, और y1 की वैल्यू तो अभी हमने कैलकुलेट की है 0.1, इसी को यहाँ पर पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज द वैल्यू ऑफ y2। सेकंड थर्ड एट n इज इक्वल टू 2, एंड 2 के लिए हमारे पास क्या होगा, y3 इज इक्वल टू 0.1 इंटू 0.9 y2, और y2 की वैल्यू अभी हमने ऊपर फाइंड किया 0.19, ये पुट करेंगे तो ये भी इसका आंसर आ जाएगा। सो व्हाट इज दिस, इन फैक्ट दिस इज द वैल्यू ऑफ y एट, दिस इज दिस y1 इज इन फैक्ट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ y एट x1, वो हमने फाइंड की है। व्हाट इज दिस, दिस इज वैल्यू ऑफ y एट x2, वो हमने फाइंड आउट की है।
और ये जो लास्ट वैल्यू थी हमारे, दिस इज द वैल्यू ऑफ y एट x3 एंड वी नो दैट what is the value of y1 sorry x1, this x1 is in fact is equal to हमारे पास 0.1 है, ठीक है, 0.1 है ऊपर, you can see it, yes 0.1 और this x2 is equal to 0.2 and this x3 is equal to 0.3। ये हमारे पास वैल्यू है y की किस पे है, किस पॉइंट पे है, 0.2 पे है, 0.2 और जो लास्ट वैल्यू हमारे पास है दिस वन, दिस इज इनफैक्ट x3 is equal to 0.3। So here we see that how can we find Euler method, और इस Euler मेथड से हमने जो डेरिवेटिव हमारे पास गिवन थी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस थी, जिसमें जो y था वो डिपेंड कर रहा था ओनली वन वेरिएबल x के फॉर्म में, और इसमें हमें गिवन कंडीशन होती हैं और इसमें एज की वैल्यू जो गिवन थी उसके साथ हमने आइलर मेथड को अप्लाई करते हुए जो जो डिपेंडेंट वेरिएबल y था उसकी वैल्यूज फाइंड की है डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी हम क्या कर सकते हैं, ये जो क्वेश्चन हमारा था इसमें भी अगर आपने एरर को चेक करना हो तो आइलर मेथड के बाद अगर हम इसका एरर फाइंड आउट करना है, दैट इज आल्सो वेरी इजी। कि क्या करेंगे, जो जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम सॉल्व करेंगे फॉर y, हाउ कैन टू सॉल्व, इसका भी हम इंटीग्रेट करेंगे ऑन बोथ साइड्स और y के लिए इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। लेफ्ट साइड पे y आ जाएगा, राइट साइड पे हमारे पास मे बी इन द फॉर्म ऑफ x हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी और उस इक्वेशन में हम डिफरेंट वैल्यूज को पुट करेंगे जो गिवन कंडीशंस हैं, तो उस एग्जैक्ट सॉल्यूशन को और जो कंप्यूटेड वैल्यू जब हमने आइलर मेथड से फाइंड आउट की है, तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे, कैसे कंपेयर करते हैं, जो एग्जैक्ट वैल्यू में से कंप्यूटेड वैल्यूज को माइनस कर देंगे तो हमारे पास इनके एरर्स आ जाएंगे।